Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, first of all, I wish you a very happy Republic Day. So I hope that you understand the necessities and the requirements and the responsibilities you need to have. You would be undertaking as a UPSC civil servant. तो बहुत ज़रूरी है समझना कि आप जब काम करोगे तो आप जब पब्लिक सर्विस में आओगे तो what are the what are the qualities or what do you say good practices that you need to inherit or you need to take along with you so that you can serve as a good civil servant aspirant. So this is what UPSC is all about, and in this series we are helping you with the comprehension part for your CSAT, and we are doing previous year questions. So this is part 1 of the year 2020. We have covered all the previous year questions from the year 2014, and now we've reached 2020, and so on and so forth will be taking up till 2023. So I hope these sessions will help you. तो आपको अगर ये सेशन अच्छे लगते हैं गाइस तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो चलो गाइस शुरू करते हैं. Before we go any further, I have the best thing available for you if you are a beginner for CSAT part. We have launched a comprehensive guidebook. Now, in this guidebook, you are given everything from strategy to syllabus to sources for CSAT preparation for all the subjects. And you can download this book for absolutely free, zero cost. The link for this book has been given in the description of the video. So you go download this comprehensive guidebook and get benefited from it. So let's begin, guys. We'll be discussing 4 passages in this session, and we'll be looking at different type of questions. So let's begin, guys. First question, first passage, we have to find which of the following assumptions is right or not. So we are given 3 assumptions. So what is an assumption? Something that can be considered true considering the premises of the passage. What can happen further? So that is the assumption. What is the next step, right? तो चलो गाइज पढ़ते हैं पहला पैसेज और फिर सॉल्व करते हैं इसको. तो in India, authorities always look to store the maximum amount of water in reservoirs during the monsoon season, which is then used for irrigation and generation of electricity during the summer months. तो वो क्या कह रहा है कि अथॉरिटीज़ हमेशा क्या कोशिश करती हैं कि जो reservoirs हैं जैसे आपके डैम्स हो गए या लेक्स हो गई या reservoirs हो गए वहाँ पे सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वो मानसून सीजन के ड्यूरिंग वो स्टोर करते हैं और फिर बाद में उसको इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए समर मंथ्स में यूज़ करते हैं. It is an internationally accepted practice that the water level of a reservoir should be kept below a certain level before the onset of monsoon season. ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि मानसून सीजन से पहले रिजर्वॉयर जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हो उसका जो लेवल है वो एक सर्टन लेवल से नीचे होना चाहिए क्योंकि यार पानी भरने की जगह भी तो होनी चाहिए रिजर्वॉयर्स में मानसून सीजन से पहले. दिस इज सो दैट व्हेन मानसून रेन्स कम देयर इज अ स्पेस टू स्टोर द एक्सेस रेन वाटर एंड ऑल्सो सो दैट द वाटर कैन बी रिलीज इन अ रेगुलेटेड मैनर. एब्सोल्युटली मैंने वही कह रहा था ना कि भाई जो पानी है उसका लेवल कुछ एक लेवल से नीचे होना चाहिए रिजर्वॉयर्स में ताकि जब मानसून की बारिश आए तो वो उसको स्टोर कर पाए और बाद में उसको रेगुलेटेड मैनर में उसको यूज़ कर पाए. But the authorities store the maximum amount of water in reservoirs even before the close of the monsoon. ठीक है. लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो मानसून आने से पहले ही जो रिजर्वोयर्स हैं उनको भर के रखती हैं ओनली टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरिगेशन. ठीक है. लेकिन ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ और ज़्यादा इरिगेशन में उसको हेल्प कर पाएँ. तो क्या एग्जाम्पशन दिए उसने. हाई रिस्क आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वॉयर्स आर ड्यू टू आर ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. कोई ओवर डिपेंडेंस की बात तो नहीं करी उसने बट ये है कि मिस यूज़ होता है उसका. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल्ली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग द मानसून सीजन. एग्जैक्टली कैपेसिटी पूरी यूज़ नहीं होनी चाहिए उसमें थोड़ा जगह होना चाहिए ये उसने बोला है बिल्कुल वैलिड है. और रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया कि डैम्स का जो रोल है फ्लड कंट्रोल में उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में. तो आई थिंक ये भी कहीं पे दिया नहीं हुआ फ्लड के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ. तो आई थिंक ओनली 2 इज द राइट assumption which can be taken out from the passage. So इस तरह से जो आपको रेलिवेंटली गिवन है उसको देख के ही आपको अपने ऑप्शन चूज करने होते हैं. चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. हमें लॉजिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस हमें ढूंढने हैं और 2 इन्फ्रेंस दिए हुए हमें चूज करने हैं इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है. तो वी हैव टू फाइंड द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज. तो पढ़ते हैं.
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो हम 1991 की बात करते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज शेप्ड लार्जली बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट than by the economic priorities of the people और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के। 1991 में जो लिबरलाइजेशन की जो चेंजेस लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए थे इकोनॉमी में, इंडिया में, आपको याद होना चाहिए, वो basically they were shaped by the economic problems of the government. They were not shaped by the economic priorities of the people. लोगों की economic priorities पे नहीं थे वो, या long term development objectives नहीं थे उनके, वो सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही रिफॉर्म्स लाए गए थे। Thus there were limitations in the conception, और तभी उसमें कमियां भी थी, limitations in the conception and design which have been subsequently वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस, और बाद में उसको वैलिडेट भी किया गया कि वो गलत तरह से उसको डिज़ाइन किया गया। जॉबलेस ग्रोथ हुई, ठीक है, जॉबलेस मतलब बिना जॉब के ग्रोथ देखना। परसिस्टेंट पॉवर्टी, पॉवर्टी बढ़ती रही, राइजिंग इनइक्वालिटी बढ़ती रही, हैव माउंटेड एज प्रॉब्लम सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगैन, और तब से ये प्रॉब्लम खड़ी रही है, जॉबलेस ग्रोथ, परसिस्टेंट पॉवर्टी और राइजिंग इनइक्वालिटी। एंड ऑल दीज ईयर्स लेटर, और इतने सालों बाद, फोर क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट द इकोनॉमी, तो चार आज भी मुश्किलें खड़ी हैं, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन एज द कंस्ट्रेंट्स ऑन द कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के, कंट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे ये चार चीज़ें उनको मुश्किल दे रही हैं, मुश्किल पड़ रही है उन चीज़ों से इसकी, right? So that is the country's future prospects. Now these problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development, कि इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें ग्रोथ को सस्टेन्ड बनाना है और ट्रांसफॉर्म करना है इनटू मीनिंगफुल डेवलपमेंट। तो व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज? इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट। It is essential to rethink and redefine the economic role of the state in the quest for development, कि उसको चेंज करना पड़ेगा। Yes, India has not made effective implementation of its policies in the social sectors, nor made sufficient investments in them. Second में कहीं ये बात नहीं हो रही कि effective implementation of policies in social sectors, social sector में हमने नहीं किया है उसको, और nor made sufficient investments, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कहीं बात नहीं हो रही है, और ना ही ऐसा हो रहा है कि सोशल सेक्टर में, उसको हमने इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाज वेरी क्लियर कि हमें रीथिंक और रीडिफाइन करना पड़ेगा, सो ओनली वन इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस थर्ड पैसेज पे। सॉरी ये हमने कर लिया अभी। अच्छा नहीं, इसका सेकंड क्वेश्चन है उसी पैसेज के ऊपर, ये दो क्वेश्चन वाला पैसेज था। अब हमें कुछ अजम्पशन दिए हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि सही है या गलत है। तो देखते हैं गाइस। इंडियाज इकोनॉमी नीड्स टू बी ग्रेटली इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल इकोनॉमी सो एज टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एंड टू सस्टेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम, कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उसको। कहीं पे देखो ग्लोबल इकोनॉमी की वैसे कहीं बात हुई नहीं है। तो आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ which would reduce poverty and create sufficient employment in the long run. would economic liberalization would cause, ऐसा हुआ तो नहीं है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ विच वुड रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी बढ़ी है और सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आई थिंक दोनों ही यहाँ पे assumptions है वो गलत है, तो नीदर वन नॉर टू assumptions आर वैलिड है, कि ये भी नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। वी हैव टू change the reforms, we have to look at the economic priorities of the people and long term development objectives, not with global economy, ऐसा कुछ तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। so both the assumptions were invalid। चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। which of the following is the most rational inference, जो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंक जो पैसे देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग, वो कम होने लगा है। इट्स डिक्लाइन हैज बीन अ सीरियस कंसर्न एज क्रेडिट ग्रोथ इज असेंशियल टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट के, और ये बड़े ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब बैंक के पास क्रेडिट नहीं होगा देने को इंडस्ट्रीज को, तो वो इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं कर पाएंगे। द प्रॉब्लम्स ओरिजिन्स लाई इन द इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स, जो रिफॉर्म्स 25 सालों में लिए गए उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि बैंक क्रेडिट नहीं है उनके पास। एन इंस्टीट्यूशनल चेंज दैट शुड हैव फॉलोड द 1991 रिफॉर्म शुड हैव बीन सेटिंग अप ऑफ अ रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन फॉर बैंक्स, कि इंस्टीट्यूशनल चेंज जो होना चाहिए था
1991 रिफॉर्म्स के बाद वो था सेटिंग अप ऑफ अ रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन फॉर बैंक्स, एक रेजोल्यूशन जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, ऐसा कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए था इन अ मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी जो है, इन अ मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड बस्ट्स, ठीक है, जहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। बैंक शुड बी अलाउड टू सेट अप एंड टू फेल, बैंकों को मतलब बनना और उनका फेल होना अलाउ करना चाहिए था। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन। आज हम बैंक्स को बंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है उनको शट डाउन करने का। वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल, और ऐसे ही लॉस मेकिंग बैंक्स है उनको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और वो बर्डन बन जाते हैं कंट्री की इकोनॉमी पे। सो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज? इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इकोनॉमी टू एक्सपेक्टेड लेवल्स। यस, कहीं ना कहीं कहा है इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद फेलियर्स ऑफ बैंक्स। यस, दैट इज द बेटर इन्फ्लुएंस जो उसने कहा है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेलियर ऑफ बैंक से डील नहीं कर पाता। एंड इंकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स, दैट इज व्हाट दे हैव कन्वेड इन द पैसेज। तो इस तरह से गाइस लॉजिकल क्वेश्चन को देख के अपने लॉजिकल इन्फ्रेंस पे पहुंचना होता है हमें टू सॉल्व द पैसेज ऑर्गेनिकली एंड टू गेट टू द आंसर। तो गाइस अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो you can also join us in a comprehensive course जिसमें सारी concept classes, practice questions, test series, full length test, sectional test, weekly live doubt sessions और live revision classes आपको इस कोर्स में दी जाती हैं जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएँ, और डे 1 पे ये आपको अवेलेबल मिलती हैं। So you can check out our courses and there is a special discount which is going on. The link for our courses have been given in the description of the video, so go check it out. Or guys, if you need the PDF of these and many more such sessions, you can download this from our Telegram group, Telegram channel. The link has also been given in the description of the video. और अगर आपको कोई डाउट आता है, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. This is our email ID, hello@edutap.co.in. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Make sure that it is your aim, it is your target, it is your goal to crack your dream job this year and get achieve prosperity and strike the right opportunity this time. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you. I'll see you again tomorrow with more such sessions, with more such passages. So thank you so much and happy learning to all of you.